Thank you. Yes. Dujenji, I need the presentation to be shared, if it's possible. But let me introduce you first. Yes, yes. I'll make you host. So I welcome all the participants to this course. I hope that the inaugural session and followed by one of our eminent designers, Professor Garima Singh, yesterday was quite enlightening. I hope so. You must have enjoyed going through it, and you must have got a hint of what you are going to be having in the next sessions. And as I assured you in the beginning, that this course is going to be immensely helping you, because here are the experts who are not just educationists, but they are professionals in the field. So we welcome Sanchita Gupta ji to take this class for today, and she'll be talking about garment construction. As a fashion journalist or a fashion communicator, you must know how to write about a particular garment. About its fabrics, about its colors, garment being designed season wise. So what are the garments for this that are in use in trains in summer season or in the winter season? So she's going to talk about types of garments, colors, styles, and please note down things wherever you find it is important and listen to it carefully. I introduced her in 2-3 lines. It's basically she's educator, designer, fashion stylist, and founder of her fashion brand, Fash Ensemble. She has designed costumes for many award-winning movies across the world. I think network is not working right now. Dujendra, can you hear me? So that's okay, sir. You would like me to start? A little bit more, because Sanjay has worked in many international films and TV series as costume designer, and director, and she featured in BBC Worldwide as the BBC newsmaker during pandemic. So just to add to her introduction, and that's all. I think over to you. Thank you so much, sir. You can say a little bit more about your work and your experience. Okay. Dujendra, who was supposed to introduce you. Yeah, no problem, sir. Good evening, everyone. First of all, I would like to thank Professor Subhash Dhulia and Mr. Dujendra Kumar for inviting me to such a great platform where we can share our ideas, our experiences, and our knowledge. It's a great platform. I found, and I immediately said yes to be here. Many thanks for that. And I would like to introduce myself. I'm Sanchita Gupta. I did my graduation from Pantnagar University, then did my post-graduation in fashion from National Institute of Fashion Technology, New Delhi. And after doing that course, I joined garment industry, and where I worked with various international brands like Les Claiborne, Philippe Van Heusen. I'm talking about the year 96, 97, 98, 99, and 2000, when these brands were not available in India, but they had their offices, liaison offices in India. So I worked with them as a product developer. So product developer, or you can say a designer with those brands as Indian counterpart. So that was my initial journey. And then in year 2000, I joined NIFT as assistant professor. So I joined my own alma mater. And of course, I was assistant professor there for 6 years, but somewhere then due to my industry call, I
had to resign and joined back the industry and started my own label called Fashionable. So Fashionable, my brand is in basically in my office is in Shahpur Jat, store is in Shahpur Jat and Dubai. And I'm majorly into fashion, garments, manufacturing, styling, and the majorly into film costuming. So there are two parts of fashion. Basically, one is fashion and the other one is fashion costume styling for films. So in fashion, what happens is like we design as per the demand, or as per the market, or as per the customer. But in costume design, we design as per the film's demand, as per the film script, as per the film director's vision, what he wants to portray in the film. So we have to justify that. So that is totally different from fashion designing. So I'm keeping a balance and enjoying both as of now. And another one film, Shimla, is going to be released next week on 11th May. I will share the details of the film. So I have done the costume design of that film. So now coming back to the topic, my topic of today is designing fabrics to dresses. So we all understand basic fabric as a fabric, and there are various processes are involved, when we start from fabric and make a dress. So can we share the presentation, sir? You're on mute. You are host now. Sir? You are host, so you can share your screen. I cannot share actually. Let me just see. Let me just see if I can share. Yeah. Got it? On the bottom, there is green. I'm just trying to see. Some problem with my sharing actually. So can someone share from your end? Share because you are the host. You have to share the screen, I think. In the bottom, there is this green. Yeah, share content. Yes. Share screen. Yes. And then you click on that. Is it okay? Can we you all see the screen? Yes, it's okay. It's okay now. It's okay. Okay. So my topic of today is designing fabrics to dresses. So as I spoke earlier also, there are different types of processes involved when we are starting from fabrics and manufacturing a dress. First of all, let's understand what is fabric technically. So हम बोलते हैं ना fabric है, कपड़ा है, cloth है. So there is a technically, basically fabric is a network of single or multiple yarns. Okay. Fabric is if you will see our fabric, you will see our shirt, if you see a garment, it's a network of single or multiple yarns. Now, what is yarn? Yarn is basically a long continuous length of fibers. Okay. And then what is fiber? Fibers are natural or synthetic structures that can be spun into yarns. So
For any textile, any fabric, any garment, fiber is the basic unit. Okay. So when we are saying natural or synthetic fibers, there are different types of natural or synthetic fibers. Like we all say, no, like it's silk, it's wool, it's cotton. Now see what are types of fabrics. There are natural and man-made or synthetic fabrics. So natural fabrics are like silk, wool, linen, cotton, and man-made fabrics are synthetic, or we can say synthetic fabric. Those are nylon, polyester, acetate, different types of fabrics. So out of these so when we are talking about fibers, that means when we are talking about silk, so we are talking about the silk fiber. Silk fiber, when we have so many of silk fiber, we twist them and make a long continuous thread that is called yarn. And when we interweave the yarn, then we make the silk fabric. So that's how happens. That is the whole process of from fiber to yarn to fabric. Then comes basic. Okay, now we have the fabric. So what happens from fabrics to dresses? There's a basic process when we cut the fabric and sew, or when we do the tailoring, it becomes a dress. Okay. So when we are making dresses, there are different terms we use in fashion and even in fashion journalism. When you're writing an article, when you're visiting a design house, when you're talking to a designer, or when you're meeting a celebrity. So different type of fashion terminology is there when we are talking about the fabrics to dresses. But the main basic process is cut and stitch or sew or tailor. So first I would like to talk about is bespoke or custom made. As you can see with the arrow, the first picture is a bespoke garment or a custom made garment. Custom made garment is somewhere where, someone, a customer goes to the designer or the tailor and says, okay, I want a yellow shirt. I want, in my size, but I want a square pocket. I want a flower. I want a round cuff. So where the tailor or maker just customize everything for the customer. That is called a bespoke or bespoke fashion or custom made garment. It's very clear from the first picture. You can refer the arrow. The next category is preth. Preth is basically ready to wear. You can see here again, ready to wear means it's not made as per your body, but yes, it is available in standard sizes like SML, XL, double XL, or extra small. So preth category is basically available on, these are ready to wear. So, these are available in shops, they are available online. So anybody just go and pick up their related size. Someone wants M size, they want XL size, they want double XL size. And if alteration is required, of course they do that, but it's very much different from custom made or bespoke. So I hope this is very clear what is bespoke garment and what is preth or ready to wear garment. Then the third category is couture. Couture is, again, if you see, is one of a kind of fashion outfit. It's usually made by a designer, where they make outfit for the customer for a particular occasion, for pageant, for fashion show, for specially made, a beautiful outfit made by hand. There is a lot of handwork involved in that. Fourth category is haute couture. It's again made by designer or a design house, but it's like extravagant. There is a lot of designing, lot of thinking process, lot of work goes into that. And then the last category is avant-garde. So avant-garde is basically experimental outfit. There are a lot of events like Met Gala, or you must have seen Oscar awards, red carpet.
So people or celebrity, they do wear experimental outfits over there, you know, the best of the gowns, best of the dresses, best of the sari, such kind of outfits. So basically, when you're reporting, when you're writing, or when you're addressing someone, or when it's an interview, so if you're like clear about these categories, you will be more and more precise in writing or in reporting. So otherwise, if you want, you can just note down these terms. You can find on the internet more about it. I have just given a small brief and the distinct feature about each type. Then may I ask a question, or like Yes. to understand it better? Like in the beginning, you said fabric and fiber and yarn and all. So मैम अगर हम हिंदी में बात करें बिल्कुल देशी भारतीय हिसाब से, तो मैम फाइबर लाइक रेशा हम फिर उसको काटेंगे, देन वो yarn बन जाएगा, फिर हम उसको, अगर मैं सही समझ रहा हूँ, मुझे बताना या गलत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आती हूँ पर आपको फिर से बताती हूँ। इसमें क्या होता है ना, हाँ बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। फाइबर जो होता है हमारा रेशा होता है, जैसे होता है ना कॉटन होता है, कॉटन में कपास का रेशा होता है ना, हम लोगों ने देखा होगा कपास, कहीं ना कहीं देखा होगा कपास का रेशा होता है, ठीक है। ऐसे रेशम के कीड़े का रेशा होता है, ठीक है। उसको निकालते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, फिर उनको मशीनों में या हैंडमेड तरीके से, अगर कपड़े भी जो हमारे बनते हैं दो तरह से बनते हैं, एक तो हैंडमेड बनते हैं जो हैंडलूम्स पे बनते हैं, और एक मशीन मेड या मिल मेड होते हैं जो बड़ी बड़ी मिलों में प्रोसेस होता है। बनेंगे कि मिल में बनेंगे, राइट? हाँ ठीक है। तो जो ये रेशे होते हैं, रेशे पे हम सबसे पहले यूनिट पे आते हैं फाइबर। जो रेशे होते हैं, रेशों को अगर पहले आपने देखा होगा गांधी जी और उस जमाने में तकली से करते थे या चरखे से काटते थे, ठीक है, तो वो यान बनाते थे। ओके ओके फाइन, ठीक है, रेशे से यान बनाया, ठीक है मैम। तो जब वो धागे की फॉर्म में आ जाते हैं, सारे फाइबर्स इकट्ठे होकर हम उनको एक लंबा फॉर्म देते हैं, तो एक स्ट्रैंड बन जाता है, उसे हम यान बोलते हैं। ओके, और यान का और मैं थोड़ा डिटेल बताऊं तो यान एक सिंगल थ्रेड भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है या 2 या 3 धागे ट्विस्ट करे गए हों। अगर आपने घर में सिलाई वाली जो धागे की रील होती है, तो वो ट्विस्टेड यान होता है, उसको आप खोलेंगे तो उसमें 2-3 यान एक साथ मिलेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है मैम, बिल्कुल। इसी तरह से हमारे अब वो यान कुछ भी हो सकता है, वो कॉटन भी हो सकता है, वुल भी हो सकता है, सिल्क भी हो सकता है, राइट। अच्छा, आप लोगों ने हैंडलूम देखा होगा या कहीं ना कहीं उसकी पिक्चर देखी होगी, जहाँ पे बुनकर होता है, वो कपड़ा बुनते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। हाँ जी मैम। तो वो जो कपड़ा बुनते हैं, सो दे टेक मल्टीपल यार्न्स। ओके, हाँ जी। एक खड़ा होता है, एक ऐसे होता है, उसकी वीविंग होती है। हाँ जी हाँ जी। तो उसका रिजल्ट होता है वी गेट द फैब्रिक। ओके 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 फाइन, ठीक है। तो यही चीज हमारे मिल्स में होती है। मिल्स में वही चीज मैकेनाइज्ड होती है, सारी चीजें हमारे। अच्छा, अब ये तो हम प्योर फैब्रिक्स की बात कर रहे हैं। अब यहीं पर मैं एक और चीज बताती हूँ। एक तो जैसे हमने बोला कॉटन होता है, फैब्रिक वूल होता है, सिल्क होता है। हमने कई बार ये टर्म सुनी होगी या हम पहनते भी है, जैसे कि हम बोलते हैं ये पॉली सिल्क है, या ये कॉट्सवुल है, ठीक है। दीज आर कॉमन टर्म। पॉली सिल्क का मतलब हुआ कि वो उसमें धागा जो यान है वो पॉलिएस्टर का भी है और सिल्क का भी है। इट्स अ ब्लेंडेड फैब्रिक। ओके फाइन। एंड व्हेन वी से कॉट्सवुल मींस उसमें कॉटन का भी यान है और उसमें वुल का भी यान है। ओके फाइन। और आपने अगर अपने कपड़ों के लेबल पर देखेंगे तो कई बार लिखा होता है 65% रेयॉन, 35% कॉटन। आपने सभी पे देखेंगे तो कुछ ये हम उस पे डायरेक्शंस होती है, तो वो दैट इज अगेन द परसेंटेज ऑफ द फाइबर और यार्न इन दैट पर्टिकुलर फैब्रिक। ओके मैम, ठीक है, ठीक है मैम, वेरी मच क्लियर, थैंक यू सो मच मैम। यू वेलकम। एनीथिंग यू गाइस वांट टू आस्क, प्लीज आप आराम से पूछिए, जैसे भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स पे हम आ गए। वही होता है सिल्क, वूल, लिनन, मैनमेड, सिंथेटिक में होते हैं। और ऑफ कोर्स अभी हमने बात की, वी टॉक्ड अबाउट द ब्लेंडेड फैब्रिक्स। सो दोस आर ब्लेंडेड। ब्लेंड मींस 2 डिफरेंट तरह के फैब्रिक्स या यार्न्स या फाइबर्स वो मिक्स करके बना हुआ कपड़ा। ओके
Okay, anything to ask about the fabrics to dresses? Bespoke, I hope it's clear to everyone. It's custom made. जहाँ पे जाकर अगर मैं किसी से कस्टम मेड बनवाने जा रही हूँ तो मैं उसको बोलूंगी कि मुझे येलो कलर की शर्ट चाहिए या ब्लू कलर की शर्ट चाहिए, उसपे मुझे व्हाइट कलर की पाइपिंग चाहिए, मेरा शोल्डर 15 है बट चेस्ट 16 है या 32 है. When I'm not getting the ready-made, breadth or ready-to-wear SML XL, हर किसी को fit नहीं होता. So people prefer to go for a bespoke tailor or a custom-made designer who can design the outfit or make the outfit as per their body type. And couture is again clear. It's a fashion garment, and haute couture is again made by a designer or design house for a specific purpose, for a show, for a public appearance of any celebrity. And avant-garde is again the highest form of fashion where a designer experiment with a lot of things and make amazing costume or gown or design, or even for men's also, of course, to be presented and to show at global platform. Any question from this slide? मैम बस एक है पॉलिएस्टर में मैम किसका मतलब जैसे आपने पॉली सिल्क बताया तो लाइक सिल्क के लाइक वो आपने पॉली सिल्क बताया तो उसमें पॉलिएस्टर प्लस सिल्क तो पॉलिएस्टर व्हाट इज पॉलिएस्टर मैम? पॉलिएस्टर इज अ मैन मेड फाइबर. ओके वो केमिकल से इन चीजों से बनाया जाता है. लाइक वुल हमें पता है वो शीप से आएगी, सिल्क हमें पता है सिल्क ककून से आता है, रेशम के कीड़े से आता है, कॉटन हमारा कपास या जो कपास की खेती है उससे आता है, लिनन जो होता है वो पेड़ों की छाल या उनकी हमें बहुत सारी कैटेगरीज है, मतलब ट्रीज से भी बहुत डिफरेंट तरह के बास्ट फाइबर्स बनते हैं. तो हम उतनी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बट यस बेसिक कैटेगरी हम डिवाइड करते हैं फाइबर्स या फैब्रिक्स की, नेचुरल और मैन मेड. Then types of outfits and fashion style. Types of outfits हमें पता है, like we say pant, shirt, sari, dresses and everything. But when we are more knowledgeable or more clear about different terms of fashion style, we present ourselves in a better manner, So अगर हम बोलते हैं, if we talk about the classic style, classic means we always talk about the formal or traditional wear, whether it's menswear, kids wear or women's wear. Like men's के लिए हम लोग usually we always formal wear is, अगर हम summer के लिए तो होता pant, shirt is tucked in and belt के साथ pant पहनी है, formal shoes पहने हैं. और वही अगर आप shirt साइड में यू कट है एंड आपने टक इन नहीं करी है, बाहर है, और पैंट की जगह आपकी थोड़ी सी कैजुअल स्टाइल है, तो वो आपका कैजुअल स्टाइल में आ जाता है. पैंट की जगह आपने जीन्स पहनी है या कोई ट्राउजर पहना हो तो वो हमारा कैजुअल स्टाइल कहलाता है. उसके बाद आता है हमारा फॉर्मल. हम हमेशा कहते हैं हाँ फॉर्मल पहन के जाना है, आज मैंने फॉर्मल पहना है, आज मुझे फॉर्मल पहन के ऑफिस जाना है. फॉर्मल इज बेसिकली ऑफिशियल हमारे अपने ऑफिस के लिए भी, हम किसी और के ऑफिस में जाते हैं उसके लिए भी होता है. और ऑफिशियल आउटफिट्स जो हम पहनते हैं वो भी होती है, पर जो पर्टिकुलर कंपनीज में भी होता है. लाइक अगर आप हम यहाँ पर ये शायद पिक्चर एयर इंडिया की ली गई है पहले की. सो डिफरेंट कंपनीज हैव देयर ओन ऑफिशियल आउटफिट्स. अगर आप एयरलाइंस में देखेंगे तो उनकी हर एक एयरलाइंस की डिफरेंट ऑफिशियल आउटफिट है. ओके, सो इस तरह से अगर हम जोमेटो की बात करें, स्विगी की बात करें, तो उनकी भी उनके जो डिलीवरी बॉयज हैं, दे हैव देयर ओन ऑफिशियल आउटफिट. ईच कंपनी हैज देयर ओन ऑफिशियल आउटफिट, वो उनको पहनाते हैं, तो वो फॉर्मल हमारी कैटेगरी में आता है. देन कम्स थर्ड कैटेगरी एज अ विंटेज. आप लोगों ने जरूर सुना होगा, बट विंटेज है कि विंटेज कब की विंटेज, 100 साल पुरानी, 50 साल पुरानी, 10 साल पुरानी और 20 साल पुरानी. तो विंटेज बेसिकली वी रेफर अ फैशन व्हिच इज ऑलमोस्ट 50 years old or more than 50 years old.
not like 30 years or 10 years old. So this is the definition. So we call it retro also to the same. Then comes ethnic. Ethnic outfits or ethnic fashion, not fashion, but ethnic outfit or ethnic dresses are based on geographical region or society. So अगर हम इंडियन एथनिक की बात करेंगे तो हमारे इंडियन एथनिक में मेंस के लिए होता है कुर्ता पजामा शेरवानी, that's the ethnic outfit. For women's it's sari, it's gharara, it's long skirt top. अगर हम साउथ इंडिया में जाते हैं they wear half sari. So ethnic doesn't mean just the sari in India, just the pajama kurta. It covers entirely the each and every part of India geographically. अगर हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में सारी एक एथनिक या सलवार कुर्ता एक एथनिक आउटफिट है, तो साउथ इंडिया में उनके लिए एथनिक में हाफ साड़ी हम बोलेंगे उनकी आउटफिट है. फिर आता है कैजुअल, जहाँ पे देयर इज नो स्पेसिफिक डिजाइन और इट्स comfortable and we wear for like long hours. Like अगर हम अभी बोले हम अपने घरों में बैठे हुए हैं, most of us are wearing casual outfits. I think none of us is wearing like coat suit or some traditional or ethnic outfit, right? Then next category is sporty outfit. Sporty outfit is basically any outfit which is which we are wearing during any active wear. That's called sporty. For example, sporty doesn't mean only the tracksuit. Sporty means आप ट्रैक पैंट एंड टी शर्ट भी आपने पहना हुआ है, कभी ट्रैक पैंट के साथ एक कैजुअल शर्ट भी डाली हुई है. सो दैट इज अगेन एक्टिव वेयर और स्पोर्टी वेयर. एंड देन वी हैव 1 2 3 4 5 more categories: bohemian, street style, punk, gothic, artsy. So those related pictures are in the next slide, which I'll share now. Okay. बोहेमियन इज बोहेमियन आप लोगों ने टर्म बहुत सुना होगा, फिल्मों में काफी देखा होगा, कई बार दीपिका पादुकोण के सॉन्ग में शी इज वेरी वेरी फेमस टू वेयर बोहेमियन आउटफिट्स. बोहेमियन concept of outfit is basically natural element in raw form. It's more of a hippie culture. It's inspired from hippie culture. Outfit में different तरह के prints होंगे, different fabrics का mix match होगा. वो natural भी हो सकते हैं, they can be artificial also. Artificial means man-made also. किसी particular तरह का print होगा और raw form में use करते हैं. So there will be threads, there will be shells जो हमारे समुद्र के किनारे मिलते हैं वो होते हैं. तो बहुत चीजों का मिक्स मैच करते हैं वो. They experiment a lot when we talk about the hippie culture or natural elements. When they use in raw form, shells होते हैं, stars होते हैं, ये चीजें उसमें hang करती होती हैं. तो that is called bohemian outfit. आप हमारे अब नॉर्थ कैंपस में जाएंगे तो वहाँ पे बच्चे students, I would say, you will see a lot of them in bohemian outfits. Then comes street style. There is no particular dress code. You can see with the picture. It's just comfortable, it's easy, and you just walk anywhere on the street. It's comfortable. You wear shoes, sport shoes, and you wear mostly layers of the garments. So that's called street style. Uske baad, another definition is of punk style. Punk, I'm sure some of you must have heard this term. So punk is basically multicultural. It's like a rock band player style. So I have given the some reference pictures also so that you can identify easier. Punk style, we basically people they color their hair, they use multicolor pants, multicolor shoes, and like a rock band player. Then comes Gothic. Gothic is mostly people are top to toe. They wear black garments, black accessories, black shoes. So that represents Gothic style. And the last one is artsy. That is
Artsy is basically, I'll give you one example. Basically, something, if I am wearing a shirt, but it's painted by me, or if you're wearing a cap, but you have painted it yourself, or you are wearing a denim jacket and you have embroidered some kind of motif on that. So it's always unique and it's handmade by the person who's wearing it most of the time. So that is, they call that category is called artsy. So I think I have covered some basic terminology here. And apart from this, what happens is, between the process of fabric to dresses, fabric भी हम समझ गए, it started from fiber, then yarn बना, yarn से कपड़ा बना, फिर कपड़े से हमारा या तो वो bespoke कैटेगरी में गया, या वो प्रेत में गया, या कुट्योर में गया, या हॉट कुट्योर में गया, या अवागाटे में गया, राइट? हमारा बेसिक प्रोसेस कट एंड सो या टेलरिंग हुआ, एंड देन इट came into a dress form in one of these categories. And so that is the fashion categories. And here what happens now, there are different type of fashion style categories. So here we only talked about the fabrics, talked about fabric to dresses. So now there are different types of treatments also we give to the fabrics. Once fabric is formed, we do dyeing of the fabric, we can do embroidery on the fabric, we can do printing also on the fabrics. So dye के भी different forms होते हैं, like digital printing होती है, hand dye होती है, embroideries you must have seen, जो कढ़ाई बोलते हैं हम लोग पुराने जमाने में, अभी भी जो घर में बड़े लोग होते हैं वो फ्रेम के ऊपर कढ़ाइयाँ करते हैं, हाथ से बनाते हैं मोटिव, वही अब मशीनों पर भी होती है, वही कंप्यूटराइज तरीके से भी होती है. सॉरी, ब्लॉक प्रिंटिंग भी होती है ना मैम? हाँ, ब्लॉक प्रिंटिंग भी होती है, स्क्रीन प्रिंटिंग भी होती है. So different types of printing. So those are called basic surface exploration. मतलब फैब्रिक हमारा बन गया है, उसकी सरफेस पे अब हम क्या करना चाह रहे हैं, राइट? तो उस फैब्रिक जो बन गया है उस पे हम डाई करके डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं, कलर के ऊपर कलर दे सकते हैं, मल्टी कलर बना सकते हैं, एम्ब्रॉयडरीज डिफरेंट तरह से कर सकते हैं. प्रिंटिंग के भी बहुत सारे तरीके हैं, डिजिटल प्रिंट होता है, स्क्रीन प्रिंट होता है, रोटरी प्रिंट होता है. सो एंड ये जो सरफेस एक्सप्लोरेशन है, वी कैन कंबाइन आल्सो, लाइक मैंने एक आउटफिट मुझे चाहिए जो मैं कस्टम मेड बनवाना चाह रही हूँ, जो मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल येलो कलर में, बस उसमें एम्ब्रॉयडरी मुझे ब्लू कलर की चाहिए, लेकिन उसमें एक मोर बना हुआ चाहिए प्रिंटेड, राइट? सो इस तरह से हमारे फैब्रिक से ड्रेस तक की पूरी एक जर्नी कंप्लीट होती है विद ऑल दीज काइंड ऑफ some terminology which I have shared. So I think I would love if like you people wants to ask something, or we can discuss any question if you have. मैम ये भी होता है कि कुछ धागे का काउंट होता है, और हाँ, वो क्या होता है जरा, क्योंकि एक हाँ, धागे का क्या होता है ना, लाइक अगर आप धागे का काउंट पढ़ेंगे कहीं पे भी, तो वो कई बार मैं आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल, 20s बोलते हैं, 20 लिखा होता है, देन उसके ऊपर s लिखा होता है, राइट? या फिर लिखा होता है 20/2, ओके? सो 20s का मतलब उस धागे का काउंट 20 का काउंट 20 है. जितना बड़ा काउंट होगा, फॉर एग्जांपल 10 काउंट का मतलब हो गया कि धागा मोटा होगा, 30 काउंट का मतलब हो गया धागा पतला होगा. और ये एक स्ट्रैंड के बारे में बात हो रही है. इफ आई एम सेइंग 20/2 मींस 20 काउंट के 2 धागे वहां पे लगे हुए हैं, ओके, उस पर्टिकुलर यार्न में. इज इट क्लियर? जैसे I'll explain it again. जैसे हमारे पास सबसे ये जो है ना, ये जो है 20 काउंट, ये क्या काउंट है, मतलब कि धागे 20 धागे की थिकनेस है. अच्छा, धागे की थिकनेस है. या तो ये थिकनेस मतलब किस मेजरमेंट क्या है इसका, थिकनेस क्या इसकी बहुत डिटेल्ड टेक्निकल टर्म होती है.
आई मीन वो उसका काउंट कैसे निकालना है, अच्छा। दैट्स यू नो नॉट क्योंकि ऐसे मैंने कहीं पढ़ा था कि एक स्क्वायर में एक ब्लॉक में जो आते हैं ना वो। हाँ हाँ, मैं बताती हूँ उसका क्या होता है ना। जैसे हमारे कुछ फैब्रिक्स होते हैं, या काउंट के अलावा एक और टर्म होती है जीएसएम। जीएसएम इज ग्राम पर स्क्वायर मीटर। ओके, जैसे हमारी टी शर्ट है, जो जितने भी स्ट्रेच फैब्रिक्स होते हैं उनका मोस्टली, या जो हमारे वोवन नॉर्मल फैब्रिक भी होते हैं, उनका एक जीएसएम होता है। जीएसएम इज ग्राम पर स्क्वायर मीटर, मींस पर स्क्वायर मीटर में वो कपड़ा कितना है। अगर जीएसएम 200 है, दैट मीन्स उसका ग्राम पर स्क्वायर मीटर में वो 200 ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर है, राइट। वर्सेस 300 ग्राम पर स्क्वायर मीटर मीन्स जो 300 वाला कपड़ा होगा वो उसकी थिकनेस ज्यादा होगी। जैसे आप नॉर्मल कपड़ों में देखते हैं ना कि कोई पतला होता है, कोई मोटा होता है, ठीक है। तो उसी तरह से वो जो जीएसएम आता है एट द एंड, वो धागे की काउंट से आता है। जितना मोटा धागा जाएगा किसी वीविंग में, अगर आपने जो भी शर्ट पहनी हुई है आप लोगों ने, अगर आप देखेंगे, अगर आप उसको काउंट, आप उसको नॉर्मल देख लो कि 1 by 1 इंच में उसका उसकी थिकनेस क्या है, और आपने जो भी ट्राउजर पहनी है तो 1 by 1 इंच में उसकी थिकनेस क्या है। दोनों में डेफिनेटली डिफरेंस होगा। शर्ट आपकी पतली होगी और ट्राउजर थोड़े थिक फैब्रिक की होगी। दैट मीन्स जो आपका शर्ट का धागा है, थ्रेड है, उसकी काउंट कम है और वो पतले यार्न का बना हुआ है, राइट। और जो आपका पैंट है या ट्राउजर है, उसकी काउंट मोटी है और वो मोटे धागे का बना हुआ है, मोटे यार्न का बना हुआ है। और मोटा यार्न कब होता है? मोटा यार्न तब होगा जब आप सिंगल स्ट्रैंड की बजाय मल्टीपल स्ट्रैंड लेंगे, या एक ही स्ट्रैंड आपका मोटे फाइबर से बना हुआ हो। इज इट क्लियर? Have I answered your जी question? जी। और एक जैसे ये होता है कि जैसे इकत है, डबल इकत है, ये भी बोला जाता है ना वीविंग के दौरान, हाँ, वो क्या वीविंग के है? दौरान मैं बताती हूँ। वीविंग का प्रोसेस मैंने आपको जैसे बताई थी ना, जैसे क्या होता है ना, मैं आपको ऐसे समझा सकती हूँ। एक हमारा ये वॉप होता है और ये वेफ्ट होता है, राइट। अगर आप अपने कपड़े को देखेंगे तो एक सीधा धागा होता है, एक खड़ा धागा होता है, और एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगी एक लेटा धागा होता है। तो या आपने कभी कपड़ा अनरावल किया होगा तो देखा होगा ना, एक खड़ा चलता है, एक टेढ़ा चलता है, राइट। जी। तो जो वीविंग की प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, लूम जो होता है, वेदर इट्स हैंडलूम और इस मिल वाला लूम, उसमें पहले खूब सारे धागे खड़े लगे होते हैं, राइट, लाइक टॉप टू बॉटम आई वुड से। फिर अक्रॉस दैट 90 डिग्री एंगल पे दूसरा धागा चलाते हैं टू वीव, ओके जी। तो एज अ रिजल्ट आप इंटर वीविंग होती है तो वो फैब्रिक का फॉर्म लेता है, ठीक है। तो आपने कई बार देखा होगा डबल शेडेड फैब्रिक, सबने नोटिस करे होंगे कि इधर से देखो तो ग्रीन लगता है, इधर से देखो तो येलो लगता है जी। कभी नोटिस करें? तो वो ये होता है कि उन्होंने वॉप वाला धागा कलर नंबर 1 का लिया और वेफ्ट वाला धागा कलर नंबर 2 का लिया, ओके। ये हमारा कलर नंबर 1 हो गया और ये कलर नंबर 2 हो गया। तो ऐसे करते जब वीविंग पूरे फैब्रिक की हो रही है तो उसमें 2 कलर्स आएंगे, राइट। Now I'm coming to your question कि इकत क्या होता है। इकत में क्या होता है ना, जो बेसिक इकत में एक सर्टेन पैटर्न बना होता है, आपने नोटिस करा होगा। कुछ फ्लावर बने होते हैं, कुछ पत्तियां बनी होती हैं, वो हेजी सा पैटर्न होता है, राइट जी। तो जो हमारा जो अब नॉन इकत की बात करते हैं। सबसे पहले जो नॉन इकत में क्या होता है, जो रेगुलर फैब्रिक होते हैं, हमने कपड़ा बनाया, सब कुछ किया, उस पर प्रिंट बना दिया, फूल बना दिया, पत्ती बना दी, जो हमने बनाना है वो बना लिया, राइट। लेकिन इकत में क्या होता है, इकत के जब हम वीविंग करते हैं, जो उसमें खड़ा कपड़ा और जो दूसरा इंसर्ट करते हैं 90 डिग्री पर, वीविंग के टाइम पर ही उन धागों की, उन यार्न पे हम प्रिंटिंग वैसी दे देते हैं। यहाँ पे हम कपड़े पे प्रिंटिंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे यार्न के कलर्स ऐसे डाल रहे हैं, राइट। तो जब वो वीव हो रहा है तो वीविंग के टाइम पर ही उसमें वो पैटर्न बन के आ रहा है। तो मतलब कि कलर किया हुआ धागा है वो? हाँ। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रैंड जो है, जी, एक जो लंबा हमारा सा। स्ट्रैंड है, लंबा सा है, उस पे पहले से कैलकुलेशन करी हुई है कि इतनी दूर येलो डालना है, इतनी दूर मुझे ब्लू डालना है, उतनी दूर रेड डालना है। तो जब वो वहां पर लूम पे वो कपड़ा धागा आएगा, वो अपनी प्लेस लेता चला जाएगा और वो डिजाइन फॉर्म होगा। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड वेरी वेरी इंट्रिकेट एंड इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव फैब्रिक, ओरिजिनल इकत, ठीक है।
ठीक तो है। उसमें ऊपर से प्रिंटिंग नहीं हो रही, एंड इट्स अ वेरी टफ प्रोसेस कि उसको पूरा कैलकुलेट करना कि आप एक मल्टी कलर का धागा है और उसको आप इस तरह से वीव कर रहे हैं कि आपका वो कंप्लीट एक पैटर्न बन रहा है। हम्म। तो फिर Okay. डबल इक्कत क्या होता है फिर? डबल इकत में क्या होता है ना, फ्रंट और बैक आपका दोनों सेम होता है। ओहो। इस हाँ डबल इकत इज लाइक फ्रंट एंड बैक फैब्रिक दोनों सेम प्रिंट नहीं बोलेंगे, सेम पैटर्न आता है उसमें। या तो दैट मीन्स उसमें जो फर्स्ट धागा लगाएगा, जो खड़े वाले धागे लग रहे हैं जी। वो भी उस पैटर्न के हिसाब से सेट है कि जब वो वीव हो जाएगा सारा कुछ तो फ्रंट और बैक दोनों सेम लगेंगे। तो और मैंने देखा लूम में कई बार ना छेद जैसे होते हैं कार्डबोर्ड के, उसके थ्रू धागा नीचे आता है लूम में। हाँ हाँ, वो एक्चुअली क्या होता है ना, डिजाइन का एक तो जो मैंने अभी बताया दैट इज अ फार्मा प्लेन बना। वीविंग, है ना, दैट इज अ प्लेन वीविंग। वो उसको पंचिंग बोलते हैं। तो पंचिंग से हमारे बेसिकली जैकार्ड डिजाइन बनते हैं। जैकार्ड डिजाइन अब कौन से होते हैं वो मैं बताती हूँ। आपने कई बार देखा हो ना, प्लेन फैब्रिक पे सेल्फ डिजाइन हम बोलते हैं, अरे ये सेल्फ डिजाइन है, व्हाइट पे व्हाइट अंबियां बनी हुई है या व्हाइट पे व्हाइट फ्लावर बने हुए हैं। तो वो जो पंच कार्ड होता है उसमें वो बेसिकली कोड्स होते हैं। हमारे जो वीवर्स होते हैं या जो भी डिजाइन मास्टर्स होते हैं वो उस हिसाब से पंचिंग करते हैं। तब पता होता है कि उन्हें पता होता है कि हाँ ये मुझे डिजाइन चाहिए, तो उसके लिए मुझे इस तरह के होल्स बनाने कि ये पर्टिकुलर धागा इसी टाइम पे पास हो। ओके, सो दैट्स लाइक अ सेमी ऑटोमेटेड प्रोसेस। मैं उसकी बात कर रही हूँ। अदरवाइज तो मिल मेड में तो बहुत कुछ करते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर काइंड ऑफ हैंडलूम फैब्रिक्स। तो वही डिजाइन रिपीट होता चला जाता है। फॉर एग्जांपल एक रो हमारी बर्ड्स की है या चिड़ियाओं की है, उसके ऊपर एक दूसरी रो हमारी फ्लावर्स की है, तो वो फिर बर्ड्स फ्लावर्स बर्ड फ्लावर्स बर्ड फ्लावर्स रिपीट होते चले जाएंगे पूरे फैब्रिक पे। थैंक यू मैम। वेलकम मैम। जो आपने ये जो काउंट बताया था धागों हाँ। का, तो मलमल के कपड़े का काउंट क्या रहता है मैम? मतलब हम अगर मलमल हमने मांगना हो तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि सही मलमल है तो उस पर कुछ लिखा होगा ऐसा काउंट मैम? सी मैं बताऊं, अगर आप यहाँ मार्केट में कभी भी जाएंगे ना, वो काउंट नहीं बताते हैं, because they themselves, most of them, they don't know. But yes, if you go to a shop which is they are dealing in exports or something, so they do have the stickers where a count is written. काउंट का भी क्या होता है ना, अगर मलमल का कपड़ा है तो मलमल का कपड़ा वैसे भी थोड़ा सा हल्का होता है, मींस उसकी काउंट कम होती है, उसका वेट कम होता है एक नॉर्मल कॉटन का फैब्रिक वर्सेस एक मलमल का कपड़ा। मलमल का कपड़ा की यूसेज क्या होती है, बेसिकली जो नॉर्मल ड्रेसेस या आउटफिट्स होती है उनकी लाइनिंग में यूज होता है, वो हल्का कपड़ा होता है। तो उसकी काउंट और 30s का काउंट सिंगल यार्न मोस्टली होता है, वो काफी पतला, या 80s का यार्न होता है, 80 और 30 ये सब मैं काउंट बता रही हूँ। तो एज सच मैं ये बोलूंगी, अगर आप हल्का कपड़ा या कभी भी लेने जाते हैं कुछ, तो उसका बेस्ट तरीका होता है हाथ से थोड़ा सा जो कहते हैं ना छिजना, हाथ से थोड़ा सा खींच कर देखिए कि उसकी वीव या उसका जो धागे हैं वो इधर उधर ना हो, और अगर इधर उधर हो भी रहे तो वो वापस अपनी जगह पे आ जाए, अगर वो स्ट्रेचेबल फैब्रिक है। सो दैट इज द ओनली वे, इजी वे फॉर एनी कस्टमर। मैम आपने जो बताया ना काउंट वाला, इससे मुझे हमने वर्कशॉप अटेंड की थी ब्लॉक प्रिंटिंग एंड डाइंग, तो उसमें ये जो काउंट वाली बात निकल के आई तो वहां से मुझे याद आया, तो उन्होंने कुछ बताया था, अवधेश पांडे सर हैं जयपुर से, तो उन्होंने बताया था कुछ कि 30 का काउंट था शायद मलमल के कपड़े का, जो आपने भी बोला कि 30 और 80s के बीच में। तो अभी मैं काउंट वाली बात आप कह रहे हो कि लिखा नहीं मिलता, और आपने कहा था कैसी शॉप्स पे मिलेगा मैम, दोबारा बताना कैसी शॉप पे मिलेगा काउंट? जो बेसिकली एक्सपोर्ट फैब्रिक्स में डील करते हैं। ओके, एक्सपोर्ट फैब्रिक्स। ओके। हाँ, जैसे अगर दिल्ली की बात करें, अगर आप दिल्ली से हैं तो मैं आपको बता सकती हूँ, अगर काउंट ऐसी शॉप पे जाना है जहाँ पर आपको फैब्रिक की सारी डिटेल्स मिल जाए, इवन उसका परसेंटेज मिल जाए कि क्या कितना परसेंट कॉटन है कितना, तो नेहरू प्लेस की मार्केट है जहाँ पर मोस्टली इस तरह के फैब्रिक्स आपको मिल जाएंगे। सो दोज आर बेसिकली फॉर द एक्सपोर्ट पर्पसेस। और जो रिटेल वाले शॉप्स हैं, जो फैब्रिक्स जहाँ पर हम खरीदते हैं, 2 मीटर चाहिए, 5 मीटर चाहिए, 6 मीटर चाहिए, they usually I have not seen much, they are sharing the details of the fabric. They'll say बस कि हाँ ये कॉटन है, ये मिक्स है, ये ब्लेंड है, but they'll not give you the exact detail or percentage of the fabric.
the percentage of the content of the fabric basically. Okay, ma'am. ठीक है, ma'am. Thank you, ma'am. Sanjita ji, it's going great. Yeah. But एक I चीज hope so. क्योंकि you know आप भी ना जर्नलिस्ट में लिखता हूँ, तो what I feel is that ना एक बार जो since हमारे जो participants हैं, they are going to write on, you know, and the communicate fashion and the trends and the dresses. तो मैम एक बार इनको ये बता दीजिए सीजन वाइज कौन कौन से फैब्रिक्स मतलब यूज होते हैं, सो दैट यू नो जब ये रिपोर्ट करने जाएं, जब ये ट्रेंड पर लिखें, तो इनको ये मालूम चल सके कि हाँ ये फैब्रिक है, उन फैब्रिक के बारे में कुछ लिख सकें. ओके श्योर. तो सीजन वाइज फैब्रिक्स इन यूज. हाँ, मैं बताती हूँ. अभी क्या है ना, अगर हम ब्रॉडली बात करें तो अभी हम दिल्ली या इंडिया की बात नहीं करेंगे, राइट. पर हम इंडिया में हैं. इंडिया में भी क्या है ना, वेदर हर जगह डिफरेंट होता है. हमारे नॉर्थ इंडिया में पीक समर्स होती हैं, पीक विंटर्स होती हैं. साउथ इंडिया में मोस्टली समर्स होती हैं. वेस्टर्न इंडिया में मोस्टली प्लेजेंट होता है. सो बट स्टिल अगर हम फैशन की बात करें तो ऑफ कोर्स हमारा समर फैशन और विंटर फैशन ये होता है. तो समर के जो हमारे जो फैब्रिक्स होते हैं बेसिकली, आप जितने भी मोस्टली जो नेचुरल फैब्रिक्स एक्सेप्ट वुल आप देखेंगे, यू कैन नोट डाउन मे बी समर फैब्रिक्स हमारे कॉटन होते हैं, सिल्क होते हैं, जूट होता है, लिनन होता है. और जो विंटर्स फैब्रिक में वुल है, एक्रो वुल है, मरीनो वुल है, पश्मीना है. तो इस तरह के वुलन ब्लेंड्स, कॉट्स वुल जो मैंने मेंशन करा था, कॉटन एंड वुल, ये फैब्रिक्स होते हैं. सो बेसिकली लेकिन जब हम फैशन की बात करते हैं तो ग्लोबली अगेन फैशन इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. एक अब स्पेशली कोरोना के बाद एक everyone is talking about sustainable fashion. You must have heard about that. तो सस्टेनेबल फैशन में हर कोई चाहता है कि नेचुरल फाइबर्स, नेचुरल फैब्रिक्स, ये सारा कुछ यूज करे, विच इज अगेन जूट, कॉटन, हेम्प, फ्लेक्स, लिनन, सिल्क, ऑफ कोर्स फॉर कोल्डर कंट्रीज वुल, पश्मीना, ये सारा कुछ. और या डिपेंड्स अपॉन एक्चुअली आपका कस्टमर जो है उसे किस पर्पस के लिए कोई गारमेंट पहनना है, उसके बेसिस पर फैब्रिक्स डिसाइड होते हैं उसे कहाँ पहनना है. हो सकता है एक दिल्ली का रहने वाला कस्टमर वो लंदन में विंटर्स में दिल्ली का रहने वाला कस्टमर दिल्ली के समर में वो ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, तो वहां पर तो विंटर्स हैं, तो उसके लिए वो विंटर की आउटफिट लेगा फॉर दैट पर्टिकुलर सेरेमनी और ओकेजन और इवेंट. तो ये बहुत आई थिंक बेसिक है. बाकी मैंने आपको कैटेगरीज वगैरह काफी कुछ बता दी. उसके अलावा आप लोग कभी भी कुछ जानना चाहें या एनी क्वेश्चन. मैम एक अहिंसा सिल्क होता है, अहिंसा सिल्क. हाँ, अहिंसा सिल्क में बताती हूँ. अहिंसा सिल्क क्या होता है, जैसे हम सबको पता है ना, रेशम के कीड़े सबको पता है, रेशम के जो कीड़े होते हैं वो सिल्क, बेसिकली सिल्क जो होता है वो बनता है रेशम के कीड़ों से या सिल्क ककून से. ओके, सिल्क का ककून जो होता है वो उगाया जाता है, उसे हम फीड करते हैं मलबेरी लीव्स पे. ओके, मलबेरी लीव्स, हाँ शहतूत, उसकी लीव्स वो खाते हैं और बड़े होते हैं. फिर उनको उठा के वहां से एक पर्टिकुलर स्टेज पे उनका लार्वा, या जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, ले जाके उन्हें खौलते हुए पानी में डालते हैं, तो उनके अंदर का लार्वा खत्म हो जाता है, मर जाता है, और उसकी शेल के ऊपर जो धागा लिपटा होता है उसे निकाल के बेसिकली वो अब उसे निकालकर हम यान बनाते हैं सिल्क का. ओके, तो यहाँ पर अगेन वो फाइबर टू यान वाली स्टेज आ गई. सिल्क का जो छोटा सा कीड़ा होता है उस धीरे धीरे वो अपना रेशा छोड़ता है अपनी बॉडी के ऊपर, चारों तरफ बनाता जाता है, मलबेरी लीव्स खाता है, खाता पीता रहता है और धीरे धीरे बड़ा होता है. फिर एक टाइम पर आकर उसे खौलते पानी में डाल देते हैं, और तो ये हमारा एक नॉर्मल सिल्क होता है. अहिंसा सिल्क में क्या होता है ना, सिल्क का जो कीड़ा होता है वो पत्तियां खाता है, बड़ा होता है, और जो उनके जो काफी कीड़ों की नेचुरल डेथ होती है, ठीक है, तो उन्हें मारते नहीं है. ओके, उन्हें मारा नहीं जाता. उसमें से जो अच्छा जो भी कीड़े अपनी नेचुरल डेथ में हैं या काफी सारे खराब हो जाते हैं, कुछ खत्म हो जाते हैं,
तो उनके बॉडी पर से जो रेशा निकलता है उससे सिल्क का यान बनाते हैं। सो इसलिए उसको अहिंसा सिल्क बोलते हैं। पर अब मैम आपको ये जो है ये तो मुझे लगता है कि मतलब काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि अधिकतर तो बटरफ्लाईज निकल आती हैं उसमें से, अगर समय हाँ से ना मारा हाँ जाए हाँ तो बिल्कुल। वो रोकना उस समय मुश्किल हो जाता होगा कि भाई इसकी नेचुरल डेथ, बाहर से क्या पीलापन हो गया तो वो अलग कर रहे हैं, क्या हो जाता है? नहीं, उनकी उनकी क्या होती है ना, मैं बताती हूँ। अगर आप दोनों सिल्क में डिफरेंस देखेंगे ना, जो रेगुलर सिल्क होता है दैट इज टू शाइनी एंड इट्स वेरी स्मूथ, ठीक अच्छा। है। अहिंसा सिल्क जो होता है वो थोड़ा सा रफ टेक्सचर होता है उस पे। तो उसमें क्या होता है ना, वहां पर जो हम उस कीड़े को मार नहीं रहे हैं, उसने अपनी अपनी जो साइकिल है पूरी कर ली है। तो अब उस पे जितना भी यान है वो सारा हमने निकाल लिया, और यहाँ पर क्या है ना, एक पर्टिकुलर स्टेज में हम उसको खत्म कर दे रहे हैं। हाँ। और सबसे अच्छे हमें पता है कि इस पर्टिकुलर स्टेज में उसको खत्म करने पे हमें सबसे बेस्ट क्वालिटी का यान हम बना सकते हैं, जो भी हमारा फाइबर मिल रहा है। लेकिन इधर वाली स्टेज में क्या है ना, हम यान तो बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो हमने उसको एक पर्टिकुलर स्टेज पे खत्म नहीं किया है। तो हमारा यान हर तरह का होगा, वो छोटा भी होगा, पतला भी होगा, मोटा भी होगा। फिर हम उस यान को हम यूज कर रहे हैं तो वो हमारा धागा अनइवन होगा, तो इस राइट। तरह से इसका मतलब ये स्पन सिल्क की तरह हो गया, या जैसे जो जिससे जब वो अंदर से निकलता है, काट के निकलता है ना, इसका मतलब वो कटे हुए स्थिति वाले भी सिल्क आ गए ना फिर अहिंसा सिल्क में, जिसमें कि नेचुरली निकल गया वो। हाँ अच्छा। या उसमें दोनों तरह के आगे, तभी वो वाला फैब्रिक अनइवन होता है। अगर ठीक आप बात है, देखोगे जो गांठें लगा खादी लगा बोलते हैं, के। जैसे हाँ खादी हाँ सिल्क हाँ। जो होता है, ठीक है। आपने देखा होगा उस पे टेक्सचर ओके। होता है, वो मोटा पतला होता हाँ है, जी। राइट। So that is the difference, and that is why it's called ahimsa, because they are not killing the animal, they are not ठीक killing है। the कीड़ा। ठीक है। तो ये एक्सपेंसिव भी है, सुना मैंने। यस, उसका रीजन वही हो गया ना कि आप मार नहीं रहे, आपके पास 100, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 है, ठीक है। ये मैम वही वाला 100, फंडा हो गया, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक दालें महंगी, ऑर्गेनिक जो भी हाँ खाने का हाँ, सामान है वो महंगा, क्योंकि ये वाला प्रोडक्शन कम हो गई कॉन्सेप्ट। ना, यहाँ पर प्रोडक्शन कम हो गई। बटरफ्लाईज बन गए कुछ, आई मीन हाँ वो हाँ बन गए, वही है। प्रोडक्शन तो कम हो गई। आपने 100 पाले, 100 को मार दिया, आपके 100 के कीड़े निकल, आपने उसका धागा बना लिया, दैट इज अ नॉर्मल सिल्क। लेकिन अब 100 में से आप 100 का नहीं कर रहे हैं, कुछ वो नॉर्मल है, तो आपके पास प्रोडक्शन कम आ गई। तो ऑफकोर्स जब प्रोडक्शन कम आ गई और आप एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो, तो ऑफकोर्स उसका लोग ज्यादा उसके पैसे भी देते हैं, एंड यू नो दे पीपल वैल्यू दिस, वैल्यू द कॉज। You know, it's all about, you know, value, giving a value to a cause, you know. I would also prefer to buy always the ahimsa silk. नहीं लेना नहीं लेंगे वो ठीक है, but लेंगे तो ahimsa silk लेंगे, right? So that is the thing, that's why it's costly also. थैंक यू मैम। मैम ऐसा भी कुछ है कि कोई पर्टिकुलर कलर ऑफ डाई जो है वो वी शुड गो फॉर दैट पर्टिकुलर कलर ऑफ डाइड क्लॉथ? क्योंकि जैसे हम प्लास्टिक में तो सुनते हैं ब्राउन एंड वाइट इज द बेस्ट, अदरवाइज जितने कलरफुल लेंगे तो उतना ज्यादा वो केमिकल और वो सब चीजें लाइक नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो प्लास्टिक में हम बाल्टी या कुछ भी यूज कर रहे हैं, बकेट या मैं मोल्डी या बताती व्हाटएवर। हूँ, डाइज में भी ना क्या होता है, देयर इज ऑलवेज लाइक नेचुरल डाई एंड केमिकल डाई, ठीक है। सो नेचुरल डाई में नेचुरल डाई अगेन ये हमारी प्लांट से आती है। आपने येलो वाला फ्लावर, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, अदरवाइज जो बहुत सारे हमारे नेचुरल लाइक येलो कलर हमारे टर्मरिक से आता है, हल्दी से हल्दी होती है, डिफरेंट तरह के प्लांट्स होते हैं, उनके फ्लावर्स से आता है। तो और येलो कलर हमारे केमिकली भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, राइट, केमिकल डाइज जो होती हैं। सो जो यूजुअली जो नेचुरल डाइज होती हैं, दे आर नॉट वेरी कलर फास्ट, बिकॉज अगेन उसमें केमिकल तो मिला नहीं है। बट जो हमारी जो केमिकल डाइज होती है उसमें केमिकल तो पहले से ही ऊपर से और फिक्सचर्स वगैरह डालकर उन्हें पक्का कर देते हैं कि कलर छूटे ही ना। सो एंड नेचुरल डाइज में लिमिटेशन ऑफ कलर्स है, उसमें एंडलेस कलर्स आर नॉट पॉसिबल, क्योंकि सारे कलर्स तो बना ही नहीं सकते। जो अवेलेबल है, जो भी रिसोर्सेज है हमारे, है ना, कलर है, टर्मरिक है, भिंडी से बना लेते हैं, बहुत बहुत डिफरेंट चीजें जिनसे नेचुरल रिसोर्सेज से हमारे कलर्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। बट केमिकल डाई में ऑफ कोर्स आप
जो मर्जी वो कलर क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी कलर की बैंड क्रिएट कर सकते हैं, कलर की शेडिंग कर सकते हैं। इंडिगो अगर सबसे ज्यादा जाता है, बहता है इंडिगो। हाँ, इंडिगो इज अ नेचुरल डाई, इंडिगो इज अ नेचुरल डाई, बट हाँ उसको केमिकल में भी अब बनाते हैं, आई मीन केमिकल यूज करके भी। सी केमिकल कैन प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ कलर, यू नो, एंडलेस नंबर ऑफ कलर्स, बट नेचुरल डाई हैव अ लिमिटेशन ऑफ कलर्स, कि बस वो इतना ही कलर कर सकते हैं, उसी को लाइट, डार्क एंड डार्केस्ट एंड लाइटेस्ट कर सकते हैं। सो देयर कलर बैंड इज वेरी वेरी लिमिटेड। तो अगर हम क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो see we all want to save environment, so we must follow and we must go for the natural dye, but again natural dyed garments, natural dyers, natural dye के resources are very very limited and it's very costly. So वही वाली बात हो जाती है कि what you know, like we talked about silk. So इवन जीन्स के लिए भी जब बनती है और उसके बाद जब जिस तरह का फेडेड चाहिए होता है उसके लिए बहुत पानी लगता है। हाँ, बहुत धोने पानी में, लगता है। वॉशिंग में। हाँ, 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 एक yes, जीन्स की yes, पेयर बनाने में बहुत पानी जाता है। बहुत पानी एंड जाता वी है। ऑल कंज्यूम जीन्स। तो क्या Yes, we आपको all, लगता है I कि think ये 1 to all. अवेयरनेस की कमी है क्या, ऐसा कुछ, या सिर्फ फैशन की वजह से लोग लेते हैं और यूसेज की वजह से? I think abhi, what I feel is in last I think 20 years or something, everyone is, you know, people prefer to be more relaxed and comfortable. People believe in comfortable wear. ठीक है, स्पेशली अभी कुछ टाइम तक पहले तक ये हमारे कोरोना या पेंडेमिक से पहले कपड़ों की डेफिनेशन कुछ और होती थी, पर अभी कुछ और हो गई है। पहले इको क्लोथिंग की इतनी बात नहीं होती, बहुत लिमिटेड लोग बात करते थे। हर कोई आई हैव हैड क्लाइंट्स यू नो कमिंग टू मी एंड दे never wanted to repeat the clothes, कि नहीं अब सबने देख लिया, अब तो मुझे दूसरा पहनना है, मतलब I don't want, I can't repeat my suits. So every day they used to wear a new suit. But now the concept has changed. A lot of people, they know you know that they must reuse it, and I think awareness काफी बढ़ी है अभी, for whatsoever reason, maybe economical reason is one of the major factor, but otherwise also I think people have more cautious about the clothing, the fashion, and rental clothing का भी अब काफी आ गया है. People don't want to spend 1.5 lakhs or 2 lakhs on one lehenga, rather than they prefer 20,000 में एक लहंगा लेके अपनी फोटो क्लिक करवा लें, हर सब जगह शेयर हो जाएगी. So these are like practical things. So I think one should be little cautious. We can't be like 100%, but कहते हैं ना, हर कोई थोड़ा थोड़ा करेगा तो of course environment पे there'll be big impact. जीवन की क्षणभंगुरता बता दी कोरोना ने, और लोगों को फिर रियलिटी ग्राउंड पे आ गए, हवा में उड़ रहे थे. बिल्कुल 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 बिल्कुल. कपड़ों में पहले रिलैक्स वेयर या इसका लेजर वेयर का कॉन्सेप्ट एज सच था नहीं, पर अब नाउ सबने अपनी इतनी जूम मीटिंग्स कर ली एंड उस टाइम में सबने इतना कुछ देख लिया कि now people are accepting that semi formal is okay if you are wearing in office. You know, पहले था कि नहीं कोट है तो टाई होनी ही चाहिए, otherwise you will not look professional. ऐसे भी I have seen examples, but now it's okay. You know, you should look smart. ये रेड अलर्ट क्लोथिंग फॉर वो आपने कहा था 1.5 लाख के जो लहंगे, आपने टर्म यूज की थी रेड अलर्ट क्लोथिंग, और रेंटल किराए पे जो लेते हैं. हाँ. तो ये अब काफी ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया. अगर आप उसको देखो तो बहुत सारे लोग वो प्रेफर कर रहे हैं. तो ये तो मैम कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो गया कि जो ये सस्टेनेबल और जो ग्लोबल सिनेरियो है पैंडेमिक के बाद की इको क्लोथिंग भी कह रहे हैं, साथ में ही जो आपका अभी कुछ पॉइंट आया था जब जीन्स के आसपास की बात चल रही थी कि मैं भूल गया हूँ, सॉरी फॉर दैट. सस्टेनेबल सी अभी क्या है ना, सस्टेनेबल क्लोथिंग की अगर हम मोटा अगर हम एक भाषा में बात करें तो सस्टेनेबल इज समथिंग जो मैं उसको कितना ज्यादा से ज्यादा सस्टेन कर सकती हूँ. अगर मेरे पास एक शर्ट है तो पहले शायद मैं हर रोज मंडे टू फ्राइडे शर्ट को चेंज करती थी, मैं या किसी और को भी ले कि हाँ एटलीस्ट 5 days में तो 5 different शर्ट्स होनी चाहिए.
पर अभी वो कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी मैं वो शर्ट को 10 बार पहनूंगी। ओके, तो वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं लोगों की एक्सेप्टेंस बढ़ी है इन चीजों में कि मुझे बहुत ज्यादा कपड़ों पे इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, जो शायद पहले अगर कोई एक जनरल बात कर रही हूँ कि अगर किसी ने बेनिटन की एक शर्ट खरीदी है विच इज कॉस्टिंग 5,000 रुपीज, और वो हर महीने बेनिटन के न्यू अराइवल पे जाकर वो लेता है, वो कैटेगरी अभी भी है, बट बहुत लोगों ने उस पर सोचा और उस पर अमल भी कर रहे हैं कि व्हाई टू डू दैट, मैं क्यों हर बार जाकर वो करूं, मैं उस शर्ट को मैं दोबारा भी पहन सकता हूँ, जब वो खत्म हो जाएगी तब फिर एक और नई रेंज लगेगी। लेकिन अब अगर मेरे पास 4 शर्ट्स है, सो आई रादर रिपीट दैट। लोगों का अब कॉन्सेप्ट बहुत सारे जी चेंजेस हुए हैं इस तरह के जो नेचुरल आपने सस्टेनेबल। बताई, नेचुरल, या सॉरी फॉर इंटरप्टिंग मैम, कि नेचुरल डाई वाला आपने जो बताया कि वो नेचुरल डाइज आर नॉट दैट फास्ट कलर्स, लेकिन जो आप केमिकल यूज करके तो वो तो लाइक हम अगर वो तो हमें तब पता चलेगा जब हम धो रहे हैं कि वो नेचुरल है या क्या है, क्योंकि वो निकल रहा है तो इट्स लाइक नेचुरल, और नहीं निकल रहा तो लाइक इट्स लाइक केमिकल नहीं, सिंथेटिक डाई। आई थिंक व्हेन यू आर बाइंग यू नो, लाइक क्योंकि बिकॉज जो नेचुरल डाइड फैब्रिक्स हैं दे आर नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। अगर आप फैब इंडिया पे जाएंगे, फैब इंडिया मोस्ट ऑफ अस नो, सो दे यूज नेचुरल डाई। ओके, so and but they are little expensive than any other brand अगर कॉटन की एक शर्ट लेनी हो तो। so उसका रीजन यही है कि because they are using the natural dye, so when we are buying we know whether it's natural, we are going to buy a natural dyed product or chemical dyed product. मैम जो बोहेमिया स्टाइल था, लाइक वो उस टाइम मेरा कनेक्शन चला गया था, हाँ। लेफ्ट हो गया था। तो मैम जैसे अगर हम बात करें कि उसमें एलिमेंट्स, नेचुरल एलिमेंट्स को रॉ फॉर्म में, तो अगर उसको हिप्पी कल्चर बताया, तो लाइक अगर हम ये कहें कि वृंदावन में जो हमारे जो मेटाफिजिकल अपीयरेंसेस वाले जो लोग हैं, तो क्या वो बोहेमिया स्टाइल हुआ मैम, उसको हम बोल सकते yes, हैं? या that is that is called bohemian, boho inspired style we call it, not 100% bohemian but yes boho inspired. ओके मैम, तो हमारे जो शंकर भगवान जो है वो मतलब वो जो शेर की खाल लपेटे हैं, तो वो भी बोहेमिया इंस्पायर्ड स्टाइल है, बोहेमिया नहीं, स्टाइल वो कैसे इंस्पायर्ड होंगे, उनसे तो इंस्पायर्ड हम लोग हैं। हाँ मतलब वो तो बहुत पहले आए थे। तो नेचुरली मतलब उन्होंने एक रॉ टाइगर का रॉ स्किन को लपेटा, See, तो अगर लाइक हम गॉड गॉडेसेस की बात करें तो देखो हम लोगों ने तो देखा नहीं उनको, लेकिन जब वो थे तब हम फैशन की तो बात, मतलब फैशन तो हम वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्सटाइल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, सो दे अगर वैसे देखें टेक्निकल्स, दे ऑल यूज नेचुरल फैब्रिक्स, नेचुरल डाइज। अब वनवास में भी गए भगवान जी लोग तो सब उन्होंने कॉटन यूज करा, सब कुछ उनका नेचुरल था, उनके पास रिसोर्सेज ही सारे नए रिसोर्स ही उनका सारा नेचर था, नेचर से ही नेचर से ही सारी चीजें बन के आती थी उनके पास। उस वक्त तो ये केमिकल वाली चीजें थी ही पढ़ा नहीं। था जी मैम, हमने कहीं पढ़ा था कि जो ये जो तिब्बतन लामास का जो मरून कलर है इनके जो, तो ये मैम कहते हैं कि वो केसर से रंगते थे, वो अभी ऐसा है नहीं कि, तो उसमें फिर वो फंगस नहीं लगती थी, दैट वाज द रीजन, और वो फिर धोते भी थे या कुछ भी था, तो लाइक वो उनको बॉडी को भी प्रोटेक्ट करता था, और वो सुखाते हैं क्योंकि वो एकदम ड्राई डेजर्ट एरिया, लेकिन कपड़े गीले हैं तो सूखते देर में, तो वो कहीं कपड़ों में फफूंदी ना लगे, तो फंगस ना लगे, तो इसलिए उसको वो केसर में रंगते थे, तो एंटी फंगल। इस आपको ये ज्यादा सारा, पता हाँ, ये सारा कुछ पहले होता था पर अब नहीं होता, बिकॉज नाउ इफ यू सी ऑल द लामास दे आर ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे आर अपनी फ्लाइट में बैठे हैं, कभी कहीं पर उनके लेक्चर्स हैं, कभी डिफरेंट मोनास्ट्रीज में जा रहे हैं, ऑल्सो दे आर यूजिंग नाउ दिस, मैंने भी सप्लाई करी हुई है लद्दाख में ठीक से मोनास्ट्री में, सो नाउ द फैब्रिक वी आर यूजिंग इज पॉलिएस्टर कॉटन मिक्स। सो पॉलिएस्टर क्या है, मैनमेड फैब्रिक है, तो वो ना जल्दी सूखता है, कॉटन उतनी जल्दी नहीं सूखता है। Sorry to interrupt, Sanchita ji. Yeah. We have got another lecture and Nupur Tiwari ji already there, logged in. Yeah, Thank you sure. so much. Thank you so much You for can have sharing some, insights. you can have some concluding remarks. Some Yeah. concluding remarks, yes. Any concluding remarks? Who, me? Yes.
I think it was a great session. I think वो बातें करते करते time ही कम पड़ गया और मैं ज़्यादा time नहीं लूँगी. So I thoroughly enjoyed and I hope to continue. There is always next time. Yes, sure. Thank you very much for very informative and enlightening sessions. Thank you so much, sir. Thanks a lot. I appreciate your time. Thank you so much. Thank you for inviting me, sir. All the best, everyone. Now it is time.